بزم ساخی سخن کے زیر اہتمام، ایک شام ایک فنکار کے نام۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر امام قاسم ساخی آپ کی خدمت میں ایک شام ایک فنکار کے نام آج ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرا رہا ہوں جو ایک ہم جہت فنکار ہے، وہ ایک وقت اردو استاد ہے، ایک شاعر ہے اور نیچرو تھراپسٹ ہے، یوگا تھراپسٹ بھی ہے، جسے اردو دنیا ڈاکٹر عبدالحمید کیسری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحمید کیسری صاحب، آپ کا اس پروگرام میں استقبال کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا جائے پیدائش اور یوم پیدائش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلیم کا سلسلہ بھی بتائیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امام ساخی صاحب، آپ کو اس موقع سے مجھے عطا فرمایا اور میں اپنا تعارف بتاتا ہوں۔ میری پیدائش کالیکٹ ضلع میں، کیرلا میں کالیکٹ ضلع میں کارشیری میں۔ ماشاء اللہ، اسی لیے کارشیری وہ کارشیری وہ تو اصل میں میرا والد مرحوم پی کے علی کٹی ماسٹر ہے۔ اچھا۔ اور وہ وہاں کے ہمارے گاؤں کے، ہمارے ملک کے، وہاں کے ریاست کے جانے مانے سیاستدان اور سماجی، سیاسی اور ثقافتی تعلیمی میدان میں انمول خدمات وہ انجام دیتے رہے۔ اور ہمارے گاؤں میں ایک سڑک کا نام، ان کے یادگار میں ایک سڑک کا نام ہے اور ایک کتب خانہ بھی موجود ہے۔ اور زندگی کے آخری دم تک اور سماجی خدمات میں وہ اپنے کیا ہے خدمات میں انجام دیتے رہے۔ میرے تعلیم کے بارے میں بتاؤں گا تو میں ہائی اسکول میں، میرے گاؤں کے ہائی اسکول میں تو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کوڈیتور میں اردو کالج میں ادیب فاضل پریلیمنری اور ادیب فاضل فائنل کا امتحان، اس کے بعد لینگویج ٹیچرز ٹریننگ کورس کا مکمل ہوا اور میسور یونیورسٹی 1993 میں میسور یونیورسٹی سے ایم اے پی جی اردو ایم اے حاصل کی، ڈگری حاصل کی۔ اور اس کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں مختلف کالجوں میں، اردو کالجوں میں درس و تدریس کے کاموں میں مصروف رہا۔ اور کیا ہے مکم کالج، مرکز ثقافتی اردو کالج، کوڈیتور اردو کالج، کالیکٹ پی جی سینٹر وغیرہ کالجوں میں کیا پڑھائی کے تدریس کے دوران ہمارے اسکول کے پڑھائی کے۔ اور بات یہ ہے کہ میں تو 19 سال کی عمر میں میری پرائمری اسکول کی سروس شروع ہوا اور پڑھائی شروع کرنے سے ساتھ ہی میں تو اس طرح کی آپ بتائیں نا یوگا تھراپسٹ اور ہپنوسس اور نیچروپیتھی ڈاکٹر وغیرہ کے سروس کے پیریڈ میں بھی وہ ڈگریاں تو حاصل کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ اپنا گھر کا نام غزل رکھا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہمارے گھر کا نام غزل رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے تو میں شعر و شاعری کو بےحد پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو بچپن سے میں تو شعر و شاعری میں پسند کرتا ہوں۔ اور بچوں کے لیے جو میں اور میرے دوست موجین کٹی صاحب مل کے ایک شعری مجموعہ بچوں کے لیے تیار کیا ہے اور شائع کیا گیا ہے۔ صاحب کا مقدمہ لکھ کے شائع کیا ہے۔ اور کیا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ اقبالیات اور غالبیات مجھے بہت پسند ہے۔ میں اقبالیات اور غالبیات کے ان کے بہترین اشعار کو، ان کا مفہوم سائیکولوجیکل زاویہ نظر سے دیکھ کے تجزیہ کر کے میں میرے یوٹیوب چینل میں وہ ریکارڈ پیش کرتا رہتا ہوں ملیالی لوگوں کے لیے سمجھانے کے واسطے۔ اور کہ اقبالیات اور غالبیات بہترین اشعار ان لوگوں کے لیے پیش کرتا رہتا ہوں۔ یوٹیوب چینل میں بہت سارے چینل ہیں، اس لیے تو میں اسی وجہ سے میں تو میرے گھر کا نام بھی غزل رکھا ہوں۔ آپ کی بہت ساری نظمیں سی ڈی کی شکل میں آئے ہیں اور بہت سارے جو پروگرامز آپ کے سی ڈیز کے کئی آئے ہیں، کئی سی ڈیز آ چکے ہیں۔ ہمارے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کوئی نظم اردو کے تعلق سے ہو تو سنیں۔ جی بہت ساری نظمیں ہیں، میں آج تو اردو پر میں نے ایک نظم لکھی، چھوٹی نظم میں تو پیش کروں۔ جی، ہماری میٹھی زبان ہے اردو، واہ، گلوں سے رنگی چمن ہے اردو، ہماری میٹھی زبان اردو، ہماری جان و جگر ہے اردو، ہے بھولی بھالی زبان اردو۔ وطن کی خاطر اسی زبان میں وطن پرستوں نے گیت گایا، آزادی کی وہ جدوجہد میں
तराने ये इंकलाब गाया, हमारे खूने जिगर से उर्दू वतन में रंगीन चमन सजाया। ज़बाने उर्दू के बुलबुलों ने तराने उल्फत हमें सुनाया। वली जिगर में फिराक गालिब जफर ने अपना चमन सजाया। नजीर इकबाल इसी जबान में पयाम उल्फत का गीत गाया। कलाम सुनकर इसी जबान में गुलो वो बुलबुल भी गुनगुनाया। हमारी गजलें सारे जहां में जबान की जीनत दिखा रही है। जबान उर्दू सितारा बनकर इसी चमन में चमक रही है। मोहब्बतों के पयाम लेकर खुशी का नगमा सुना रही है। जानिसार अपने लहू बहाकर मिसाल अपनी दिखा रही है। गली शहर में इसी जहां के ज़बाने उर्दू महक रही है। दहर में उर्दू बहार बनकर हमारे दिल को लुभा रही है। हमारे रग रग दिलो जिगर में ज़बाने उर्दू धड़क रही है। गुलों के रंगी बहार बनकर ज़बाने उर्दू चमक रही है। गुलों के रंगी चमन है उर्दू, हमारी मीठी जबान उर्दू। हमारी जानो जिगर है उर्दू, है भोली भाली जबान उर्दू। अच्छा, इसके अलावा आप जो है मुख्तलिफ सीडीज आपके आए हैं, मुख्तलिफ जो है गजलों के नज़मों की सीडीज आते हैं, और उसके साथ साथ जो है आपके वीडियो जो यूट्यूब में जो योगा थेरेपिस्ट के ताल्लुक से हो, नेचुरल थेरेपिस्ट के ताल्लुक से हो, तो सारी उसके ताल्लुक से कुछ बताइए। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल में 200 से ज्यादा तो यूट्यूब में अपलोड किया है। अच्छा, उसमें तालीमी नफ्सियात पर, साइकोलॉजिकल योगा, हिप्नोसिस, मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग, बच्चों की नफ्सियात, मुख्तलिफ मौजूद पर क्या है। उसके साथ में मलयालम उर्दू दोनों जुबान और सफर के वीडियो भी है। अच्छा, मुख्तलिफ मौजूद पर वीडियो आ गए हैं। हर हफ्ते में एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खुशी। और सीडी मजमू का वो क्या है, सीडीज को एक सबसे पहली बार मैं मुदी मास्टर वगैरह दोस्तों की मदद, सबा मास्टर वगैरह की हेल्प की मदद से एक नाटिया शरीफ की सीडी केरला में, उसका नाम है माहे मदीना और इसके रसूल। 2 सीडी सबसे पहली तो नाटिया सीडी केरला में तो वही है। और उसके बाद के माँ और शादाब, आदाब, फरमाइश, इस तरह की बहुत सारी सीढ़ियाँ बच्चों के लिए। अच्छा, तो ये सीडीज अगर आपकी साइट पे जाने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं सीडी मतलब हमीद कारशेरी टाइप करे तो यूट्यूब चैनल में स्पेलिंग बोल दीजिए ताकि हमारे सामने। हमीद HAMEED KARASSERY, वो हमीद कारशेरी टाइप करे तो मेरा ये तखल्लुस भी हमीद कारशेरी। माशाअल्लाह, तो ये अगर टाइप करने पर जो है बहुत सारी जो है सीडीज आपको मिल जाएगी। और जनाब, आप केरला से ताल्लुक रखते हैं। केरला जुनूबी हिंद का एक कश्मीर कहलाया जाता है, तो अब यहाँ पर बताइए कि आप केरला जैसे शहर में उर्दू जबान की अहमियत और हिफाजत क्या है? जरूर, आपको केरला से कश्मीर से तशबीह दिया है। हमारे शायर तो केरला के एक शायर है मोहम्मद सरवर साहब। अच्छा, उनका एक शेर है, तुम कहो कश्मीर को, तुम कहो कश्मीर को फिरदौस बट रोए जमीन, मैं कहूँ ये केरला फिरदौस से बढ़कर कहीं। वाह, इसी तरह मैं कहता हूँ केरला को खुदा की अपनी बस्ती करते हैं। अच्छा, अगर आपको हिंदलमानी तहजीब अब देखना है तो ये हिंदलमानी तहजीब का संगम है केरला। अब आप देखिए तो केरला में उर्दू की तरसो तदरीस के सिलसिले में देखिए, अब कोई के मजहबी कोई इम्तियाज नहीं है, सब लोग उर्दू पढ़ते हैं। अच्छा, तलबा तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, तो सब लोग तो उर्दू पसंद करते हैं। और 2000 से करीब तो उर्दू टीचर्स है, उनमें तो 40% लोग तो गैर मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू और मुसलमान का तफरीक वहाँ कोई नहीं है। इसलिए तो वहाँ के मादरी जबान सब लोगों को मलयालम तो भी है, लेकिन वहाँ के लोगों को
अक्सर लोगों को उर्दू मालूम है, क्योंकि बैरूनी ममालिक जी और खासकर तो गल्फ कंट्रीज में जाके तो नौकरी वहाँ है अक्सर लोगों को, इसलिए तो बातचीत करने में ज़्यादा ख्याल में सब लोगों को उर्दू आता है। अच्छा। और एक वजह है केरला में बहुत सारे मुलाजिम क्या मजदूर लोग बंगाल, आसाम, बिहार और यूपी के मजदूर लोग केरला में आकर मेहनत करते हैं। उनकी जबान तो उर्दू है, अरे वाह। उनसे बातें करने के लिए उर्दू पढ़ना या हिंदी जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसलिए केरला में मलयालम जैसी मादरी जुबान के बावजूद उर्दू को तरक्की देना, जी। उर्दू के फरोग में हिस्सा लेना बहुत अहम चीज है हमारे लिए। जी। नाचिस अंजुमन तरकी उर्दू का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम जानते हैं कि अंजुमन तरकी उर्दू हिंद 1903 से लेकर हिंदुस्तान में उर्दू की और तरक्की को तरवीज के में अपनी खिदमत अंजाम देने मजबूत और मजबूत अंजुमन है। वो उनका जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हक साहब थे और 1912 से लेकर बाबा उर्दू अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू का जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से 1943 में नवंबर 7 में कालीकट में ताउनाल में मुनक्कद करदा एक कॉन्फ्रेंस में अंजुमन तरक्की उर्दू की कमेटी की तश्कील हुई। उस जमाने से लेकर अंजुमन तरक्की उर्दू का जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल समद समरानी साहब एमपी है, आजकल वो पार्लियामेंट के मेंबर है। वो आप जानते हैं पूरी दुनिया अब्दुल समद समरानी साहब को जानती है, मशहूर मुकर्रिर है, मुहक्किक है, अदीब है और सियासी लीडर है। डॉक्टर अब्दुल समद समरानी साहब डॉक्टर भी है, उनको पूरी दुनिया उनको समझी जाती है। वो अब्दुल समद समरानी साहब हमको बहुत बड़ा फख्र महसूस होता है, आज भी अंजुमन तरक्की उर्दू का जनरल सेक्रेटरी है। वो आजकल तो अंजुमन तरक्की उर्दू गफर साहब ने हम बताया कि ये केरला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन उर्दू घर का एक बड़ा शानदार इमारत कालीकट जिला शहर कालीकट में तामीर हुई। इसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू हर साल में मुख्तलिफ प्रोग्राम यहाँ कालीकट में, मलप्पुरम में, केरला में मुनक्कद करते हैं। उसमें मुशायरा होता है और क्या है सेमिनार, मुख्तलिफ कौमी सेमिनार और गजल प्रोग्राम, मुख्तलिफ मुकाबलाती प्रोग्राम तो मुनक्कद करते हैं। उसमें दानिश्वर और सियासी रहनुमा और कोई बड़े अदीब, बड़े बड़े जाने माने लोग तशरीफ लाते हैं। और आजकल केरला में पूरी लोग क्या है उर्दू के महबान उर्दू इस अंजुमन में जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। जब कभी उर्दू का कोई प्रोग्राम होता है, अंजुमन तरक्की उर्दू के मतलब जो कोई प्रोग्राम आता है, उर्दू के महबान उर्दू आते हैं। और जनाब आप बैक वक्त शायर भी हैं, उर्दू टीचर भी हैं, उसके साथ जो है डॉक्टर भी हैं और उसके अलावा जो है योगा थेरेपिस्ट भी है। तो इन तमाम चीजों से रगबत कैसे हासिल हुई, किस तरह से आपका ख्याल आया कि भाई ये सारी चीजें मैं हासिल करूं? दरसो तदरीस मैं बहुत शौकीन। अच्छा अच्छा। मैं रिटायरमेंट होने के बावजूद भी मैं केरला के बाहर जाके टीचर्स को, उर्दू ट्रेनिंग कॉलेज को और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ के और कश्मीर के वहाँ के क्या है वो टीचिंग करता, लेक्चर देता रहता। और के 19 साल की उम्र से मैं तो टीचर हूँ, 35 साल 35 साल की टीचिंग सर्विस है और टीचिंग में वो बहुत पसंद है। टीचिंग के दौरान अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो सर्विस में आ जाते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ एक टीचर की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए, वो को लर्नर होना चाहिए। क्या है पढ़ाने के दरमियान वो तो खुद पढ़े, उस्ताद हमेशा तालीम हासिल करते रहे। और मैं क्या है मेरे सर्विस के दरमियान नेचुरोपैथी, मैं बहुत सालों से नेचुरोपैथी का शौकीन हूँ और वो डिग्री नेचुरोपैथी बताइए कि नेचुरोपैथी है कि वो तो करते हैं, वो को ट्रीटमेंट का इलाज ग़िज़ा ही दवा है, खाना दवा की किस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा। खाना कब खाना है बगैर दवाई के। अच्छा। और इसकी कोई हम क्या करते हैं, कोई बीमार प्रेशर और डिप्रेशन कोई बीमारी आ जाती है तो फौरन दवाइयाँ खाती है। अच्छा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी क्या सेहत का थोड़ा ख्याल रखे, डाइजेस्टिव और क्या खाने में एहतियात रखे तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए वही तरीका है नेचुरोपैथी।
और योगा यही है, योगा भी एक तरीका है हमारे सेहत को बढ़ाने के लिए और माइंड पावर को बढ़ाने के लिए और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है योगा। मैं कई सालों से मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए क्लास भी इसके कोई कोर्सेज करे हैं? बहुत है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड योगा थेरापिस्ट हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड सीनियर नेचुरोपैथ भी हूँ। माशाल्लाह। और उसके अलावा मुझे पसंदीदा एक मौजू और भी है और हिप्नोथेरापी है। वाह। हिप्नोथेरापी की वजह से जहनी अक्सर लोग, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे पास है जिनको परेशानी, जहनी परेशानियां तो है लेकिन किसी से बोलते नहीं है। क्योंकि वो तो मैं अगर वो बोले जाए तो मैं पागल समझेंगे, इस तरह वो समझेंगे। असल में उन लोगों को प्रेशर क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, इस तरह की बीमारियों को हिप्नोथेरापी के लिए इलाज करता हूँ। मैं बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, इलाज भी करता हूँ। तो ये दर्शो तदरीस के अलावा आप हिप्नोथेरेपी भी करते हैं? जी जरूर। और योगा थेरेपी भी करते हैं और उसमें नेचुरल थेरेपी भी करते हैं। बहुत खुशी की बात है जनाब। आपकी कई किताबें आ चुकी हैं जो साइकोलॉजी पर है, दर्शो तदरीस पर है और शायरी पर भी है। तो इन किताबों के ताल्लुक से कुछ अगर बताए तो अच्छा रहेगा कि कौन कौन सी किताबें आपकी नजर आई? कुल मिला के 15 किताबें मंजरे आम तो आ रही हैं। अच्छा। और उस मलयालम में और उर्दू में। अच्छा। इसमें साइकोलॉजिकल कुछ किताबें में तो बच्चों की नफ्सियात, बच्चों की फितरत पर तहकीक करके एक अच्छी किताब तैयार किया है। और तो डीसी बुक्स केरला के बहुत बड़ा पब्लिशर है डीसी बुक्स, वो शायद से बहुत सारे शुमारे तो आ गई है। उसका नाम है कुट्टिगले अरण्य पाठनतिल सहायता। अच्छा। बच्चों की फितरत को जानकर तालीमों को कैसे मदद करें, तालीम की मदद कैसे करें, तालीम कैसे दे। वो और एक किताब है, वो बीएड के निसाब में भी शामिल है। और विद्याभ्यासम उदय चिंतकल कायचपाड़े मलयालम, इसके तालीम के नए रुझान, तालीम के। और उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। और मैं और क्या ये मलयालम में लिखे क्या? मलयालम में। और उसका ट्रांसलेशन में उर्दू दुनिया में और उर्दू के रिसालों किताबें में शायद करता है। और बहुत किताबें में, और एक किताबें के मुकाम है। मैं तो रिटायरमेंट के फौरन बाद मैं इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का एकेडमिक डायरेक्टर की हैसियत से और हनफी मसले के एक पहली जमात से लेकर 5वीं जमात से पूरी किताबें वो तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। और मैं और गफार साहब जैसे लोगों को मिला बैठे किताबें भी तैयार की, मैं खुद बैठकर उनकी हैंड बुक भी तैयार की। अच्छा। और कुल 10 किताबें टीचर्स के लिए। और क्या, और उसके बहुत सारे प्यारी प्यारी नज़में किताबें मैंने बताया। और उर्दू के रिसाले और किताबों में, अखबारों में मैं लिखता हूँ, मलयालम में भी साथ साथ, दोनों जगह में। आपकी जो किताब प्यारी प्यारी नज़में है उसके ताल्लुक से बताइए कि ये किताब कब शाया हुई और उसमें कौन सी नज़में हैं कि गज़लें हैं? इसमें गज़लें नहीं है, इसमें छोटी छोटी नज़मों का एक मजमुआ है। अच्छा। मैं और मेरे दोस्त एन मोइनुद्दीन मास्टर। अच्छा। और दोनों कुल मिला के वो क्या है 52 नज़में, छोटी छोटी नज़में बच्चों के लिए। इसके सिलसिले में तो आप भी हमारे यहाँ तो तशरीफ लाए थे और इसके इस्लाह के लिए, तस्हीह के लिए आपकी मदद करते थे। और एशिया टीम में एक जमाने में आपकी बराबर हमारे वर्कशॉप में आया करते थे। अब इस नज़्म में आपको देखा होगा। लेकिन हमारी एक छोटी कोशिश है। लेकिन आजकल में तो क्या है, और 200 से ज्यादा तो ऐसी तो मौजूदा हालात के बराबर तो नज़में लिखी है। और उसमें गज़लें मुख्तलिफ असनाफ़ स्वर पर। अच्छा। तो नज़्म तो शायरी तो आ गई है मुझे। तो इस्लाह करके वो एक मजमूए कलाम तो इंशाअल्लाह मैं अभी लाने वाले। अच्छा जनाब, आप मुशायरों के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में आप जो है मुशायरों में हिस्सा ले चुके हैं, जैसे हिंदुस्तान भर के मुशायरे पढ़ चुके हैं। तो आपके तजुर्बात बताइए कि केरला के मुशायरे जिस तरह से चलते हैं, बाहर के मुशायरे जिस तरह चलते हैं, क्या कोई फर्क पाया है आपने और क्या क्या तजुर्बात है आपके, बताइए। अच्छा, मैं देखा है तो हिंदुस्तान के पूरे रियासतों में मैं घुमा फिरा हूँ। बाकायदा तौर पर हर जगह में तो मुशायरा होते हैं, लेकिन केरला में इतना मुशायरा नहीं है। तो भी अंजुमन तरक्की उर्दू, केरला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन मुशायरे को मुनक्कद करते हैं। अच्छा। मुझे एक मौका मिलता है, पहली बार मैं तो एक तालीमी सफर के लिए दिल्ली गया। अच्छा। वो निजामुद्दीन स्टेशन, निजाम गालिब अकादमी है,
वहाँ के एक शानदार कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद किया। अच्छा। मैं तो सफर करते करते वहाँ पहुँच गया। मैं बड़े तारुफ किया, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू का जनाजा कर रही हूँ, मैं तो ये कलाम पेश कर सकता हूँ। मुझे हिम्मत अफजाई दी उन लोगों ने, और सबसे पहली बार मुझे एक मुशायरे में, कुल हिंदू मुशायरे में शिरकत करने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं लखनऊ और हैदराबाद के नाटिया मुशायरे में, बहुत सारी जगहों में मुशायरा, केरला में तो तमाम मुशायरे में करता रहता हूँ। लेकिन मैं तो क्या, हमारे ये तो बड़े शायर नहीं हो, तो उनका हमारे गुल हदबंदियाँ है, उतने आप गुजारे लोगों को माहौल तो मिलता नहीं है। अगर कलाम तो नज़्में और गज़लें लिखे तो भी उसमें भी बहुत सारी इस्लाह की जरूरत होगी। जनाब, आपको कई एजाजात और इनामात से नवाजा गया है, उसमें सबसे अहम जो है नेशनल टीचर अवार्ड्स में, जो उस वक्त के सदर हिंद थे प्रणब मुखर्जी, उनके हाथों से आपने अवार्ड लिया है। तो और कौन कौन से एजाजात आपको मिले हैं, बताइए। अच्छा, मुझे सबसे पहले अवार्ड तो मिला है हमारे इलाके के अब्दू चरवाड़ी एजुकेशन फील्ड के कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा। अब्दू चरवाड़ी अवार्ड, और उसके बाद में मुझे मिला है और स्टेट अवार्ड। अच्छा। बेस्ट टीचर अवार्ड तो गवर्नमेंट ऑफ केरला, और 2015 में। अच्छा। और रिटायर उसी साल में, जब मैं रिटायर हुआ उसी साल में 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड विनर, ऑनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड विनर। वो तो एक खुशनसीबी है नाचिस को मिले, क्योंकि किसी और उर्दू टीचर को ये अवार्ड तो नसीब मिलने का चांस नहीं मिला है। उर्दू टीचर को नेशनल अवार्ड तो इसलिए तो वो खुशनसीबी है, खुशनसीबी नेशनल अवार्ड। और उसके बाद मुझे अभी तो पिछले साल में हमारे केरला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से और जुलेखा हुसैन से अवार्ड से नवाजा, और उसके बाद एक महदीन अवार्ड है। इस तरह 5 अवार्ड तो मुझे मिल गया है। आप कैसे महसूस कर? अभी तो मुझे मालूम है, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। एजाजात मिलने पर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सिर्फ तदरीस के सिलसिले में मैं जिंदगी के आखिरी दम तक तदरीस के सिलसिले में, टीचिंग के प्रोफेशन में आगे बढ़ता रहूंगा। वो टीचर भी का सबसे बड़ा फर्ज है। बहुत खुशी की बात है कि आपकी मादरी जुबान मलयालम है, उसके बावजूद आप उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं और उर्दू में शायरी करते हैं, उर्दू के फरोग के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आखिरी सवाल हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए, ये बताएं कि आने वाली नई नस्ल को बहैसियत साइकोलॉजिस्ट, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो क्या नसीहत करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी खुद इत्मीनान बढ़ाने के लिए चंद अशआर पेश करता हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखों को मेरे दोस्त खिलाना होगा, शाखों को मेरे दोस्त खिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। लेकिन हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हम ही होता है। लेकिन हम अक्सर लोग समझते हैं हाँ, हम कोई काबिल नहीं, हमारे लोग काबिल नहीं है, हम तो क्या है कुव्वत इत्मीनान नहीं है, इसलिए हम पीछे हटा देते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये सब हमारी कमजोरियां, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये कॉन्फिडेंस, कुव्वत सोच बड़े सबसे बड़ी बात है। कुव्वत सोच की क्या है, इसकी खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नामत है। इसके जरिए तो हम बहुत आगे बढ़ सकती हैं, और मेंटल हेल्थ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसे सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाना चाहिए, और क्या है तख्लीकी सोच भी बढ़ाना चाहिए, और क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहिए, तनकीदी सोच भी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए। समाजी मसाइल को तनकीदी नुक्ते ज़ाविये से देखते, और क्या है समाजी मसले को तज्जिया करके इसका हल निकालना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए। कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो, अल्लामा इकबाल का शेर है, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते। इसके साथ में नौजवान को मोटिवेट करना। बहुत खुशी बात है, माशाअल्लाह। मुबारक हो, आज हमारे प्रोग्राम में एक शादी फनकार के नाम में आप हिस्सा लें। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह का